বলতে বলতেই স্লো আর্ম ডেলিভারি, পুল করেছেন, ফিল্ডার রয়েছে পেছনে জয়, ভালো ফিল্ডিং, যোগ হবে স্কোরবোর্ডে 1 রান। 1 রানেই সন্তুষ্ট হতে হবে ব্যাটার মামুনকে। এখন স্ট্রাইকে কালী, অভিজ্ঞতা রয়েছে কালীর কাছে, আমরা জানি একজন এক্সপিরিয়েন্স ব্যাটার, বহুদিন ধরে ক্রিকেটটা খেলছেন, বিভিন্ন জায়গায় ভালো ইনিংস দলকে দিয়ে থাকেন। এখানেও দল চাইবে, ক্যাপ্টেন চাইবে তার কাছ থেকে ভালো ইনিংস একটা। পরবর্তী বল, ফুলটস বল, ফিল্ডার রয়েছে পেছনে, ক্যাচের সুযোগ ছিল, চেষ্টা করেছিল উজ্জ্বল, তার নাগালে বাইরে ছিল, 1 বাউন্স ইনটু দ্য ফ্যান্স, যোগ হবে 4 রান। তো কালী কিন্তু এখানে প্রথম বলে স্ট্রাইকটা করলেন। 4 রানের সুবাদে দলীয় রান সংখ্যা 5। 2টি বল, কনফিডেন্স অবশ্যই বাড়বে কালীর। প্রথম বলে 4টি রান। খাটো লেন্থের বল ছিল, বলটা ডিপ করেছিল, ব্যাটার পুল করতে চেয়েছিলেন, কানেকশন ততটা ভালো হয়নি যতটা তিনি চেয়েছিলেন। ভালো কামব্যাক এখানে পীযূষের কাছ থেকে, অর্থাৎ রান সংখ্যা 5, 3টি বল এখনো বাকি রয়েছে ওভারে। এটাও ভালো বল, অফ স্টেম্পে বল, সজোরে চালিয়েছিলেন, লং অফের ওপর দিয়ে খেলতে চেয়েছিলেন কালী, কিন্তু এখানে ডট বল আসবে। 4টি বল, 5টি রান, মামুন 1 বলে 1, কালী 3 বলে 4। ভালো কামব্যাক এখানে পীযূষের। আমরা জানি পীযূষ একজন এক্সপিরিয়েন্স বোলার, ম্যান ফ্রম সিউড়ি, অভিজ্ঞতা আছে, হাতের ভেলকি ভালো করে কাজে লাগাতে জানেন। পঞ্চম বল, সজোরে কালী চালিয়েছেন, ফিল্ডার রয়েছে গিরি, ভালো ফিল্ডিং, কোনো রান নেই, অর্থাৎ ডট বল। দুর্দান্ত এখানে প্রথম ওভার, যে ধরনের স্টার্টটা চাইছেন মূল 11 অধিনায়ক সুদীপ, সেরকমই স্টার্ট এখানে আসতে চলেছে। অন্তিম বল, ওয়াও, হোয়াট আ লাভলি শট, স্ট্রেট like a arrow, no chance for the fielder, 6 runs added to the scoreboard. প্রথম ওভার শেষে রান সংখ্যা 11, 5 বলে 10 রান কালী। অন্তিম বলে একটা বড় বাউন্ডারি প্রয়োজন ছিল, যেটা অবশ্যই নিয়ে এলেন কালী। ক্লাস, টাইমিং, যোগ হবে 6টি রান স্কোরবোর্ডে। 1 ওভার শেষে রান সংখ্যা 11, 10 ওভার গেম, তারা চাইবেন অবশ্যই মুন 11। আমরা আগের ম্যাচে দেখেছি 132 রানের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিল এজ 11কে, চেস করে ফেলেছিল, সেটা মাথায় খেয়াল রেখে অবশ্যই চাইবেন এখানে A to Z যে একটা বড় টার্গেট নিয়ে খেলার। এই মাঠে যে কোনো রানই চেস হতে পারে, আমরা জানি বড় রান এখানে চেস হচ্ছে, সেটা মাথায় থাকবে অবশ্যই। এখানে দেখতে পাচ্ছি খেলোয়াড় তো চোট হয়ে যাচ্ছে, আম্পায়ারও চোট হয়ে যাচ্ছে না খেলেই। ফিরোজ, ম্যান ফ্রম পাথরচাবড়ি, একজন অভিজ্ঞতা রয়েছে তার, এক্সপিরিয়েন্স আম্পায়ার, সেই সঙ্গে তার সাথে রয়েছেন মিস্টার প্রিয়জিৎ, ম্যান ফ্রম সিউড়ি, আরেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আম্পায়ার। 2 ম্যাচ অফিসিয়ালকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো। আমরা জানি কমেডি মানে ফিরোজ, এবং ডান্সিং আম্পায়ার তো অনেক দেখেছি, ফিরোজের কাছ থেকেও চাইবো 2-একটা ডান্স দেখার যখন বাউন্ডারি আসবে তখন। মামুন সজোরে চালিয়েছিলেন, উজ্জ্বল রয়েছে ফিল্ডার, ফিরে যেতে হবে মামুনকে একটা উইকেটে প্রথম। তো যে উইকেটে প্রয়োজন ছিল, কামব্যাক করেছে এখানে মুন 11, ফিরে যেতে হবে মামুনকে। সজোরে চালিয়েছিলেন, কানেকশন ছিল না, ইনারে ছিল, সোজা একেবারে সেফ ফিল্ডার উজ্জ্বলের হাতে। তো এখানে আমরা দেখতে পেয়েছি মামুনের বহির্গমন, তো ইউনুসের আগমন। ইউনুসকে পাঠানো হয়েছে 22 গজে ব্যাটিং দক্ষতা দেখানোর জন্য।
আমরা জানি বিভিন্ন জায়গায় যে ইউনুস বড় হিট কতটা লাগাতে পারে। এখন স্ট্রাইক এন্ডে ইউনুস, বল হাতে রাজশেখর। বলতে বলতেই স্লো আর্ম ডেলিভারি ছিল, বুঝে উঠতে সহজে বুঝে ফেলেছিলেন এখানে ব্যাটার ইউনুস। আলতোভাবে খেললেন, কোনো ঝুঁকি নিলেন না, কারণ জানেন এখনো অনেকগুলো ওভার বাকি রয়েছে, 10 ওভারে ম্যাচ। একটু দেখে শুনে খেলতে হবে, পার্টনারশিপ নিয়ে আসতে হবে বড় স্কোরে কনভার্ট করার জন্য। তো এখানে 2টি বল করেছেন, একটি উইকেট নিয়েছেন, কোনো রান এখনো পর্যন্ত খরচ করেনি রাজশেখর। আবারও দুর্দান্ত ডেলিভারি, ইয়র্কার ডেলিভারি ছিল। আলতোভাবে খেললেন এখানে ইউনুস, ঝুঁকি নিলেন না, অর্থাৎ ব্যাক টু ব্যাক ডট বল। 3টি ডট বল করেছেন, কোনো রান এখনো পর্যন্ত খরচ করেননি তিনি। একটি উইকেট হারিয়েছে এখানে এ টু জেড। স্ট্রাইকে ইউনুস, অবশ্যই ভাববেন একটা বড় হিটের জন্য, নাকি সেফ হ্যান্ড খেলবেন। এবং বলতে বলতেই সজোরে চালিয়েছেন, শর্ট পিচ বল ছিল, লং অনের দিকে পাঠালেন, বাউন্ডারি লাইনের বাইরে, 1 বাউন্স ইনটু দ্য ফ্যান্স, যোগ হবে 4টি রান। লাইভ স্ট্রিমিং চলছে অল স্পোর্টস প্রো ইউটিউব চ্যানেলে। তো হাটে মাঠে ঘাটে বাজারে হাতের মুঠোফোনটা বের করুন, সার্চ করুন ইউটিউবে অল স্পোর্টস প্রো। অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইবটা করে রাখবেন পরের ম্যাচে আপডেট পাওয়ার জন্য। অফ টেম্পে বাইরে বল, ডেলিভারি দেখে লেখা ডেলিভারি ছিল, সজোরে চালানোর চেষ্টা ছিল কাভারের দিকে, কোনো কানেকশন ততটা ভালো ছিল না, অর্থাৎ ডট বল। 5টি বল করেছেন, 4টি রান দিয়েছেন মাত্র এখানে, একটি উইকেটও তিনি। আবারও সুযোগ ছিল আর একটি উইকেটের। এখানে কি করলেন গিরি একজন ভালো ফিল্ডার, তার কাছ থেকে এটা অবশ্যই ক্যাপ্টেন আশা করবেন না। ইজি ক্যাচ ছিল, গুরুত্বপূর্ণ উইকেট একটা আসতে পারত ইউনুসের উইকেট, কারণ এখানে জানে গিরি যে ইউনুস থাকলে বিধ্বংস ইনিংসটা কিন্তু খেলে দিতে পারে দলের হয়ে। সেফ থাকবেন ইউনুস, একটা লাইভ পেলেন এখানে। ক্যাপ্টেন কিন্তু নিরাশ সুদীপ। রান সংখ্যা 15, 2 ওভার শেষে একটা উইকেটের বিনিময়ে এখনো পর্যন্ত 15। খুব ভালো ওভার আমরা পেয়েছি রাজশেখরের কাছ থেকে। একটি ওভার মাত্র 4টি রান তিনি খরচ করেছেন, একটি উইকেটও তিনি পেয়েছেন। পরবর্তী ওভার, তৃতীয় ওভার নিয়ে প্রস্তুত অবশ্যই পীযূষ, নিজের স্পেলের দ্বিতীয় ওভার। প্রথম ওভারে কিন্তু 11 রান এসেছিল, কামব্যাক করেছে এখানে মুন 11, 4টি রান খরচ করে একটা উইকেট তারা পেয়েছে। এখন স্ট্রাইকে কালি, নন স্ট্রাইকে यूनुस। तो चलिए इस मैच का तीसरा ओवर डालने के लिए तैयार है पीयूष। एक ओवर में 11 रन वो खर्च कर चुके थे, दूसरा ओवर अपना स्केल का। फिलहाल काली, ये लीजिए, देखा परखा, पॉइंट की तरफ कट किया, ये गेंद जाएगी बाहर, मिलेगा छक्का, जड़ दीजिए स्कोरबोर्ड में 6 रन। बहुत ही बेहतरीन शॉट काली, छोटा पटाखा बड़ा धमाका, साइज नहीं टाइमिंग देखिए, पावर देखिए, क्या टाइमिंग है वीरेंद्र सहवाग को याद दिलाते हुए। फिर से वही शॉट, लेकिन फील्डर है, कोई मौका नहीं, इजीली फील्ड किया, यानी डॉट गेंद। पीयूष कमबैक किया, दूसरी गेंद, कोई रन नहीं दिया। वाह, व्हाट अ लवली बॉल, बैक टू बैक 2 डॉट बॉल। ये गेंद तो जड़ में डाला हुआ गेंद, काली के पास कोई मौका नहीं इसको उड़ाने के लिए। फिलहाल देखा और इजीली खेला। तो अभी तक 3 गेंद इस ओवर का बचा हुआ है, 21 रन बन चुका है बोर्ड में। 3 ओवर का प्रगति में यह मैच है। फिर से जड़ में डाली हुई गेंद, फील्डर है, रन आउट का चांस, लेकिन सेफ रहेंगे यहां पर यूनुस। तो चांस क्रिएट कर रहे हैं यहां पर गेंदबाज पीयूष। अभी तक 4 गेंद वो डाल चुके हैं इस ओवर में, 6 रन पहला गेंद में आ चुका था, उसके बाद बैक टू बैक 3 डॉट गेंद, यानी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। 5वां गेंद
वाह, फिर से, और यहां पर लौटना पड़ेगा काली को। फिर से गिरी, बार बार वो मौका नहीं देंगे बल्लेबाज को। पिछले बार यूनुस का कैच छोड़ा था, इस बार सेम शॉट सेम कैच, इस बार गलती नहीं करेंगे गिरी। और लौटते हुए काली, दूसरा विकेट यहां पर आता हुआ, और वो किसने दिलाया? पीयूष। 1 ओवर 5 गेंद 17 रन वो खर्च कर चुके हैं, 1 विकेट हासिल किया। 2 ओवर 5 गेंद 21, लॉस ऑफ 2 विकेट। জামথলিয়া ইয়াংস্টার নামটা মাতে প্রাউড পুরো চারজোট গলায় সেই জিগ চিৎকার করে বলো জামথলিয়া প্রিমিয়ার লিগ জামথলিয়া। तो इमरान को भेजा गया बल्लेबाजी के लिए। अब बल्लेबाजी का छोर संभालना पड़ेगा इमरान को। फिलहाल स्ट्राइक में इमरान, लौटना पड़ा काली को। बेहतरीन गेंदबाजी पीयूष के द्वारा। तीसरा ओवर, और पहली गेंद रिवर्स के लिए गए, मिलेगा छक्का। व्हाट अ शॉट, छोटा गेंद बड़ा शॉट, कप्तान कहेंगे थैंक्स अ लॉट। প্রিমিয়ার লিগ আগুন লাগে মাঠে ছক্কা চারে উইকেট শব্দ ওঠে আকাশ কাটে জামথলিয়া ইয়াংস্টার গর্ব খেলায় এই টিম লাইভ চলছে সবাই দেখো অনস্পর্শ প্রদেশ টিম। तो चलिए 3 ओवर के बाद 27 बोर्ड पर लग चुका है, 2 विकेट खो चुके हैं A to Z, मगर रन जो है ना वो खराब रन नहीं है। 10 ओवर का गेम है, यहां से बड़ा स्कोर बन सकता है। एक पार्टनरशिप चाहिए, बीच में एक अच्छा इनिंग्स चाहिए खेलने के लिए। वो फिलहाल खेलते हुए यूनुस 5 गेंदों में 4, और इमरान अपना जलवा पहला गेंद में दिखा चुके हैं, 1 गेंदों में छक्का। मौका था रिवर्स करने का, शॉर्ट पिच डिलीवरी था, रिवर्स किया था और गेंद को भेजा था बाउंड्री लाइन के बाहर। फिलहाल गेंदबाजी के लिए भेजा गया उज्जवल को। उज्जवल नए गेंदबाज, चौथा ओवर, अपना स्पेल का पहला ओवर डालने के लिए आ चुके हैं। 5 फील्डर आउट ऑफ सर्किल हैं, कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड ऑन एंड लेग स्टंप में। ये लीजिए बेहतरीन गेंदबाजी, जड़ में डाली हुई गेंद, कोई मौका नहीं यूनुस के पास। और यहां पर स्ट्राइक में बदलाव, यानी 1 रन से तसल्ली मिलेगा बैट्समैन को। फिलहाल स्ट्राइक में इमरान 600 स्ट्राइक में बैटिंग कर रहे हैं। पहली गेंद उड़ाया था छक्के के लिए, अब दूसरा गेंद वो फेस करेंगे उज्जवल को। 28, 2 विकेट खोकर 3 ओवर 1 गेंद, 10 ओवर का मैच है। बड़ा स्कोर बनाना चाहेंगे क्योंकि पिछले ओवर में 132 इजीली चेस हो गया था। अब यहां पर ना वो भी ख्याल रखना पड़ेगा बल्लेबाजों को कि अगर बड़ा स्कोर नहीं बनाएंगे तो प्रेशर में रहेगा गेंदबाज। तो चलिए 28, अपना उज्जवल अपने स्पेल का पहला ओवर, दूसरी गेंद डालते हुए। फिलहाल स्ट्राइक में इमरान, वाओ व्हाट अ लवली बॉल। लेफ्ट आर्म बॉलर नेचुरली लेग कट डालते हैं, पता ही नहीं चला इमरान को, चौक गए, डॉट गेंद। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, पहला गेंद में सिंगल मिला था, अब इमरान को चौकाया। 3.2 ओवर, 28 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। ये तो शॉर्ट पीस डेन थी, जोर से मारने की कोशिश थी, पुल करना चाहते थे लेकिन मिस किया। निराश होंगे यहां पर इमरान। इस बॉल को वो बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लगा सकते थे लेकिन मिस किया। फिलहाल डॉट गेंद। फिर रिवर्स के लिए गए, लेग कट डिलीवरी, नेचुरल लेग कट, रिवर्स करना चाहते थे, कनेक्शन नहीं है, डॉट गेंद। बैक टू बैक 3 डॉट गेंद डालते हुए
पहला गेंद में सिंगल, उसके बाद लगातार 3 डॉट गेंद। इमरान स्ट्राइक में फिलहाल, क्या चाहेंगे, क्या चल रहा है इमरान के दिमाग में। देखा परखा, इजीली खेला सिंगल के लिए। फील्डर है पीछे, रन आउट का मौका, लेकिन जी नहीं, सेफ रहेंगे यूनुस। यानी फिर से एक सिंगल, बहुत ही बेहतरीन ओवर अपनी टीम के लिए डालते हुए। अभी तक 5 गेंद वो डाल चुके हैं, 2 रन ही वो खर्च किए हैं। इसका मतलब एक गेंद अभी भी बचा हुआ है। क्या चल रहा है यूनुस के दिमाग में? क्या वो बड़े हिट के लिए जाएंगे या इस ओवर को छोड़ देंगे? हेलो। तो अपने टीम के लिए उज्जवल ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी किया। 1 ओवर में 2 रन दिया और टीम को एक अच्छा पोजीशन में लेकर गए। अभी तक 4 ओवर के बाद 29, 2 विकेट खोकर, और कमबैक करना चाहेंगे यहां पर ए टू जेड के बल्लेबाज। ए टू जेड के बल्लेबाज यूनुस और इमरान अभी स्ट्राइक पर हैं। फिलहाल स्ट्राइक पे इमरान। गेंदबाजी के चोट संभालने के लिए आ चुके हैं राजशेखर। 1 ओवर में 4 रन वो खर्च किए थे। अपने स्पेल का दूसरा ओवर। ये लीजिए, देखा परखा और लॉन्ग ऑन के ऊपर जड़ दिया छक्का। फील्डर रहेंगे दर्शक बनकर, कोई मौका नहीं। बेहतरीन शॉट, जरूर चाहेंगे इस तरह का शॉट। कप्तान के पास जरूर एक्सपेक्टेशन रहेगा कि इमरान के बैट से और भी शॉट आए। ये कमबैक किया। गेंदबाज ने यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को डाला। अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। कमबैक किया। तीसरी गेंद, ये लीजिए, इसको तो भाई नहीं बख्शेंगे। शॉर्ट पिच गेंद, रिवर्स किया, मौका नहीं है फील्डर के पास। मिलेगा 6 रन, यानी स्कोर बोर्ड में 6 रनों का इजाफा। इसके लिए तो तैयार रहते हैं हमेशा इमरान, क्योंकि आते ही पहला गेंद में रिवर्स किया था, छक्का मिला था। फिलहाल 8 गेंदों में 19 बनाकर खेल रहे हैं। 41 टोटल बन चुका है बोर्ड में। वाह, व्हाट अ लवली डिलीवरी। जड़ में डाली हुई गेंद। फील्डर है पीछे, सुदीप फील्ड करेंगे इजीली, मिलेगा सिंगल। आफ्टर 4.4 ओवर 42, लॉस ऑफ 2 विकेट। धीरे धीरे मैच में कमबैक करते हुए ए टू जेड। स्ट्राइक में फिलहाल यूनुस। 7 गेंद खेल चुके हैं, सेट हो चुके हैं। इसको जोर से उड़ाया, दोनों फील्डर तो है स्लिप और लेग स्लिप के, लेकिन बनेंगे दर्शक, कोई मौका नहीं, बीच में निकल जाएगा, मिलेगा चौका। तो जैसे भी आए, जिस तरफ भी आए, रन्स तो रन्स है। हर रन इंपॉर्टेंट है मैच के लिए। कप्तान खुश होंगे क्योंकि यूनुस ने अभी तक 8 गेंदों में 9 रन बना चुके हैं, सेट हो चुके हैं। पावर है, टाइमिंग है यूनुस के पास, बड़ा शॉट खेलना जानते हैं। आखिरी गेंद इस ओवर का, राजशेखर 17 रन दे चुके हैं इस ओवर में। ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद, मारना चाहते थे, कनेक्शन सही नहीं है। डॉट गेंद, यानी डॉट गेंद के साथ ओवर को खत्म किया।
5 ओवर के बाद 46, 2 विकेट खोकर। इमरान 9 गेंदों में 20, यूनुस 9 गेंदों में 9 रन। ए टू जेड 10 ओवर का गेम है। मून 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और ए टू जेड पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेट खो चुके हैं। 46 रन 5 ओवर के बाद। अब यहां से 5 ओवर में ना बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा, क्योंकि कप्तान मामून को पता है कि बड़ा स्कोर अगर नहीं किया जाए। 46 उज्जवल अपना टीम का सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज को फिर से बुलाते हुए और थोड़ा बैट चेक कर लेंगे यहां पर यूनुस, क्योंकि हथियार अच्छा होना चाहिए यूथ के लिए। और चूज किया, फिलहाल वो क्या करेंगे वो तो देखने वाली बात है। लेकिन अभी स्ट्राइक में है इमरान, 9 गेंदों में 20 बना चुके हैं, सेट हो चुके हैं। अब चाहेंगे अच्छी तरह से इस मैच को फिनिश किया जाए। ओ हो, फुल टॉस गेंद थी, मिस किया। बहुत जोर से मारने की कोशिश तो किया था, कनेक्शन सही नहीं है, यानी मिलेगा सिंगल। अब स्ट्राइक में है यूनुस, पावर है यूनुस के पास, लेकिन कप्तान वो पावर देखना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट मैच है, आपको इस मैच में पावर दिखाना पड़ेगा, टैलेंट को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद और मौका नहीं मिलेगा आपको। यहां से अगर आप हार जाए ना तो आप इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे। नॉकआउट मैच है, कोई मौका नहीं रहेगा। ये लीजिए, लेग स्टंप में खेला, पीछे फील्डर है जॉय, फिर से एक सिंगल। 6 ओवर का गेम चल रहा है, सिंगल के साथ खुश नहीं होंगे कप्तान। कप्तान चाहते हैं बड़ा हिट आ जाए। अब इमरान सेट हैं 10 गेंदों में 21, 5 ओवर 2 गेंद 48। तीसरा गेंद, फिर से रिवर्स, अपना ट्रेडमार्क शॉट, बैक टू बैक खेलते हुए। कोई मौका नहीं, दर्शक तो बाहर नहीं है, लेकिन फिलहाल ग्राउंड पे जो फील्डर है ना वो बन जाएंगे दर्शक। मिलेगा 6 रन। एक के बाद एक रिवर्स कोशिश करते हुए उज्जवल फिलहाल कमबैक करना चाहेंगे। 8 रन आ चुका है इस ओवर में 3 गेंद में, अभी भी 3 गेंद बचा हुआ है। इमरान 11 गेंदों में 27 फिनिश करना चाहेंगे, बड़ा स्कोर में तब्दील करना चाहेंगे अपना इनिंग्स को और टोटल को बढ़ाना चाहेंगे। अगली गेंद के लिए तैयार उज्जवल। फिर से रिवर्स करने की कोशिश, फील्डर है स्लिप में, एपिल थी लेकिन कनेक्शन नहीं है और ये डॉट गेंद। तो कमबैक किया उज्जवल ने। अगली गेंद, 5वां गेंद। ये लीजिए, लेग स्टंप पे मारने की कोशिश थी, मिस कर गए। 1 रनों से तसल्ली रखना पड़ेगा। आखिरी गेंद, इसको भी जोर से मारने की कोशिश थी लेकिन नाकाम रहे यहां पर यूनुस। और बेहतरीन गेंदबाजी उज्जवल के द्वारा फिर से इस ओवर में खर्च किया 8 रन, 2 ओवर में सिर्फ 11 रन खर्च किया, यानी बेहतरीन गेंदबाजी। जिस तरह का गेंदबाजी कप्तान को चाहिए था वो मिल चुका है यहां पर। उज्जवल अपना स्पेल खत्म करते हुए, अभी भी 1 ओवर बचा हुआ है उज्जवल का, वो चाहेंगे अपने स्पेल को इसी तरीके से खत्म करने के लिए।
फिरोज 1 सेकंड। पियोजित 1 मिनट। टेक्निकल इशू, वेट फॉर जस्ट 1 मिनट। ओके गेम ऑन, गेम ऑन, इजी। चलिए, लेग स्टेम शॉर्ट पिच बॉल, नो चांस फॉर द फील्डर, पुल किया और मिलेगा छक्का। तो जिस तरह का शॉट की जरूरत है वहां पर खेलते हुए इमरान अपने टीम के लिए 14 गेंदों में 34 बना चुके हैं। ये लीजिए लो फुल टॉस, जोर से मारने की कोशिश, जॉय है पीछे फील्डर। 1 रन मिलेगा, स्कोरबोर्ड में 1 रनों का इजाफा, 62 बन चुका है स्कोरबोर्ड में। 6.2 ओवर। दस ओवर का मैच है, बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं यहां पर A to Z, लेकिन बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर हर एक गेंदबाज मून 11 के। ये लीजिए, अब आएगा विकेट, यानी लौटना पड़ेगा यूनुस को। फिनिश करना चाहते थे, आखिर तक खेल के एक बड़ा इनिंग्स में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन तारीफ करना पड़ेगा राजशेखर का, जिस तरह का वो गेंदबाजी कर रहे हैं। और सॉरी, बिजॉय। तो जितना तारीफ कीजिए उतना कम बिजॉय का। एक विकेट दिलाया आते ही। तो बिजॉय अपने स्पिल का पहला ओवर डालते हुए फिलहाल स्ट्राइक में भोला। जड़ में डाली हुई गेंद, भोला को मौका ही नहीं दिया। चाहते थे हेलीकॉप्टर के लिए, हेलीकॉप्टर लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन कोई मौका नहीं है बल्लेबाज के पास। जिस तरह का यहां पर गेंदबाजी हो रहा है ना, वो काबिले तारीफ है। एक के बाद एक। ये लीजिए, फिर से लेग स्टंप में मारने की कोशिश थी, कनेक्शन उतना सही नहीं जितना वो चाहते थे इमरान। फिर से सिंगल। 6 ओवर 5 गेंद, एक गेंद अभी भी इस ओवर में बचा हुआ है। आखिरी गेंद इस ओवर का, बिजॉय जोर से उड़ाया स्टेट में, फील्डर है सुदीप, मिस किया, गिरी है, तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। 1 रन मिलेगा और 1 ओवर के साथ 7 ओवर का खत्म। 65 बन चुका है A to Z का। 3 ओवर अभी बचा है। A to Z के हर एक खिलाड़ी को ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 ओवर का मैच अभी बचा हुआ है। 3 ओवर में कम से कम आपको 50 से 60 रन बनाना पड़ेगा स्कोर को बड़ा स्कोर में तब्दील करने के लिए, क्योंकि मून 11 के पास अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं जो इस रन को चेस कर सकते हैं। जिस तरह का स्टार्ट वो चाहते थे उस तरह का स्टार्ट अभी मिला नहीं। खुश नहीं रहेंगे यहाँ पर मामून, कप्तान जो है ना वो चाहेंगे। तो चलिए, कम से कम स्टार्ट नहीं मिला तो फिनिश तो आना चाहिए ना।
कौन करेंगे फिनिश, क्या भोला फिनिश कर पाएंगे? ये लीजिए, जिस चीज की बात हम कर रहे थे वो यहां पर करते हुए भोला 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 को फिनिश करना पड़ेगा, स्कोर को बड़ा करना पड़ेगा। क्वालिफायर 2 का मुकाबला है, जो टीम यहां से हारेगी वो इस टीम इस टूर्नामेंट के बाहर चला जाएगा, मौका नहीं रहेगा इसके बाद। और जो टीम जीतेगी वो सीधा पहुंच जाएगी फाइनल में। फिलहाल भोला 3 गेंदों में 8 रन। दूसरी गेंद के लिए उज्जवल तैयार है और भोला फिलहाल अपना जलवा दिखाते हुए, भोला को पता है स्कोरबोर्ड में 71 अभी तक हो चुका है, कम से कम और 40 से 50 या 60 रन बनाना पड़ेगा, तब एक अच्छा स्कोर तक पहुंचेगा ये टीम। फुल टॉस गेंद और वही रिजल्ट, ये तो नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई, आप दोगे तोहफा। तो भोला ने कहा भैया तोहफा कबूल है, ये लीजिए, और एक छक्का, बैक टू बैक 2 सिक्सेस इन अ रॉ, नो चांस फॉर द फील्डर। तो धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को बढ़ाते हुए और अपने कप्तान से ये कहते हुए कि भैया अभी तक मैं हूं ना, मैं हूं फिनिश करने के लिए। महेंद्र सिंह धोनी को याद दिलाते हुए, जिस तरह MS धोनी अपने टीम के लिए आखिर में फिनिश करते थे, वही काम यहां पर भोला कर रहे हैं। 4 गेंदों में 14, और करना ही पड़ेगा किसी ना किसी को, तो अपने टीम के लिए एक अच्छा इनिंग्स खेलना पड़ेगा। A to Z। फिर से फुल टॉस गेंद, लेकिन जड़ में डाली हुई गेंद, लो फुल टॉस थी, शायद वो निराश होंगे, मिस कर गए। अगर घुटना टेक के अगर कोशिश करते तो एक शॉट आ सकता था, लेकिन कमबैक किया उज्जवल ने। अच्छी गेंदबाजी उज्जवल के द्वारा। 3 गेंद अभी बचाओ इस ओवर में, 2 ओवर 3 गेंद वो डाल चुके हैं, 23 रन वो खर्च कर चुके हैं। भोला 5 गेंदों में 14, 77। ये लीजिए, इसको देखा परखा, प्लेस किया, व्हाट अ लवली शॉट, और याद दिलाया सूर्या कुमार यादव को, जाएगी चौका के लिए। लेफ्ट स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद, अंपायर मैच ऑफिशियल फिरोज अपना अंदाज में दिखाते हुए कि वाइड गेंद है। वाह, व्हाट अ शॉट। फिर से डीप कवर में खेलने की कोशिश थी, 1 रन मिलेगा स्कोर बोर्ड में। तो चलो, अभी भी एक गेंद बचा इस ओवर में, 83, 2 ओवर का खेल अभी बचा हुआ है, यानी 13 गेंद अभी भी बचा हुआ है। बड़ा स्कोर में तब्दील कर सकते हैं ये दोनों बल्लेबाज, पावर है, टाइमिंग है, भोला के पास भी है, इमरान के पास भी वो पावर है। 16 गेंदों में 36, स्टार्ट तो उनको मिल चुका है, फिनिश करना पड़ेगा, सेट है अपने टीम के लिए। अच्छा इनिंग्स में इस इनिंग्स को तब्दील करना पड़ेगा। शॉर्ट पिच गेंद, निराश होंगे, खेल सकते थे लेग स्टेम में, छक्का के लिए गेंद जा सकता था, लेकिन उज्जवल को मिला डॉट गेंद। यानी 8 ओवर के बाद 83, 3 विकेट खोकर, 2 ओवर का गेंद अभी बचा हुआ है। तो चलिए अगला 2 ओवर हम इस मैच का लेखा जोखा सुनेंगे मेरे साथी कमेंटेटर इंजमाम के पास। थैंक यू राहुल मास्टर। A to Z বীরভূমের এখনো পর্যন্ত সংগ্রহ 8 ওভার থেকে 83 রান, লস অফ 3 উইকেটস। ভোলা ব্যাট করছেন 7 বল থেকে 19 রানে এবং ইমরান ব্যাট করছেন 17 বল থেকে 36 রানে।
বল হাতে দলীয় অধিনায়ক দায়িত্ব দিয়েছেন পীযূষ মাস্টারের হাতে। যদিও পীযূষ মাস্টার এর আগে দুটি স্পেল অত্যন্ত সুন্দরভাবে ডেলিভারি করে গেছেন। ভোলা, হোয়াট এ ম্যাক্সিমাম, দুর্দান্ত শট। বল উড়ে উড়ে চলে গেল ফাইন লেগের ওপর দিয়ে, দুর্দান্ত একটা ম্যাক্সিমাম ভোলা ব্যাট থেকে। আবারও সজোরে ব্যাটটা ঘুরিয়েছেন এবং দুর্দান্ত একটা ওভার বাউন্ডারি। ভোলা ইজ অন ফায়ার, ম্যান ফ্রম সিউড়ি। ভোলাকে যেন কোনোভাবেই থামিয়ে রাখা যাচ্ছে না, এক লাফে পৌঁছে গেল A to Z এর স্কোর 95, লস অফ 3 উইকেটস। আবারও সজোরে চালিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যাটে বলে কোনো সংযোগ হলো না, বল চলে গেল সোজা উইকেট কিপারের দস্তানায়। ডট। দুর্দান্ত একটা কামব্যাক দেখলাম পীযূষ মাস্টারের হাতের ভেলকির মাধ্যমে। আবারও সজোরে চালিয়েছেন, হাওয়াই বল, কিন্তু না, এক রানেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে ভোলাকে। দলকে একটা বড় স্কোরে পৌঁছাতে গেলে ভোলা এবং ইমরান দুজনকে 8টা বল থেকে একটা ভালো জায়গায় পৌঁছাতে হবে। প্রস্তুত ইমরান, বল হাতে প্রস্তুত মাস্টার। সজোরে ব্যাটটা চালিয়েছিলেন, আউটের জোরালো আবেদন এবং আউট। আউট হয়ে ফিরছেন ইমরান। দুর্দান্ত কামব্যাক। পরবর্তী বল ব্যাটসম্যান মনিরুল। পরবর্তী ব্যাটসম্যান মনিরুল। ইমরান ফিরে গেলেন, সেই পথ ধরে আগমন হলো মনিরুলের। মনিরুল এলেন, দেখলেন এবং বলকে সোজা ফাইন লেগের উপর দিয়ে সীমানার ওপারে পার করে দিলেন। 6। দুর্দান্ত একটা ওভার বাউন্ডারি দেখলাম মনিরুলের ব্যাট থেকে। 9 ওভার শেষে রান সংখ্যা 102, লস অফ 4 উইকেটস। যদিও 102 এই গ্রাউন্ডে খুব একটা সেফ স্কোর নয়। আমরা আগের ম্যাচে দেখলাম 132 রানের একটা ইনিংস চেস হয়ে গেছিল। অন্তিম ওভারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বিজয়ের হাতে গুরু দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন দলীয় অধিনায়ক। স্ট্রাইকে ভোলা। ভোলা কিন্তু ক্রমশ বিধ্বংসী হয়ে উঠছেন। ভোলা এখনো পর্যন্ত ব্যাট করছেন। দুর্দান্ত শট, ডিপ ফাইন লেগের ওপর দিয়ে বল চলে গেল সীমানার ওপারে 6টি রানের জন্য। ভোলাকে যেন কোনোভাবে থামিয়ে রাখা যাচ্ছে না। আগের ওভারটাই ঠিক যেভাবে শেষ করেছিলেন সেখান থেকে আবার যেন শুরু করলেন ভোলা।
ভোলা 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 ইজ অন ফায়ার, নো বলের সংকেত। আবারও ভোলার খাতায় 6 রানের যুক্তি। ভোলা এই মুহূর্তে ব্যাট করছেন 13 বল থেকে 44। পরবর্তী বলটি ফ্রি হিট, অর্থাৎ ভোলার কাছে একটা সুবর্ণ সুযোগ। আবারও সজোরে চালিয়েছেন এবং ফাইন লেগের উপর দিয়ে বল চলে গেল সীমানার উপরে 6টি রান এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোলার অর্ধশত রান পূর্ণ হলো। ভোলাকে রিকোয়েস্ট করব ব্যাটটা তোলেন। ভোলা এই মুহূর্তে যেন নিজের হাতের ব্যাটটাকে হাতিয়ার করে এ টু জেড বীরভূমকে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। দল পৌঁছে গেল 9 ওভার 2 বল থেকে 121 রান, লস অফ 4 উইকেটস। ভোলা ইজ অন ফায়ার, ম্যান ফ্রম আবদারপুর। আবারও সজোরে চালিয়েছিলেন লফটেড শট, কিন্তু না, পিছনে প্রোটেকশন থাকায় ভোলা স্ট্রাইকটি নিজের কাছে রাখতে চাইছেন এবং আউট হয়ে ফিরতে হবে মনিরুলকে। 1টি রানের যুক্তি, স্কোরবোর্ডে 1 রান যুক্ত হবে। নতুন ব্যাটসম্যান সন্দীপ। ভোলা যদিও স্ট্রাইকটা নিজের কাছে রেখেছেন, ভোলা ব্যক্তিগত 51 রানে ব্যাট করছেন। সজোরে ব্যাটটা চালিয়েছিলেন লং অফের ওপর দিয়ে, কিন্তু ব্যাটটা বলে সেরকম সংযোগ হয়নি এবং বল চলে গেল ফিল্ডারের হাতে, সুতরাং ডট বল। লাস্ট 2 বল। আবারও সজোরে চালিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্দান্ত কামব্যাক বিজয়ের, ডট। বিজয়ের প্রশংসা করতেই হবে অবশ্যই। সজোরে চালিয়েছেন এবং বল উঠতে উঠতে চলে গেল সীমানার ওপারে এবং স্কোর বোর্ডে 6টি রানের সংযুক্তি। মাঠের মধ্যে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। ওভার আপ, স্কোর এ টু জেড বীরভূমের সংগ্রহ 10 ওভার শেষে 128, লস অফ 5 উইকেটস। অবশ্য এখানে ভোলা দুর্দান্ত একটা ইনিংস খেলে গেলেন, দলকে কিছুটা হলে চালকের আসনে বসিয়ে গেলেন। জামতলিয়া উদয়াচল সংঘের পরিচালনায় যে 4 দিনব্যাপী ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল, আজ তার ফাইনাল ডে। ফাইনাল ডে আমরা প্রথম ফাইনালিস্ট পেয়ে গেছি AJXI এবং দ্বিতীয় ফাইনালিস্টের অপেক্ষায় এই ম্যাচের বিজয়ী দল। অবশ্য প্রশংসা করতে হবে আমাদের 2 আম্পায়ারের, অনফিল্ড আম্পায়ার MD ফিরোজ এবং প্রিয়জিৎ চ্যাটার্জি, ম্যান ফ্রম সিউড়ি, MD ফিরোজ, ম্যান ফ্রম পাথরচাপুরি। আজকের এই ম্যাচটি আজকের এই খেলাটি সম্পূর্ণ লাইভ সম্প্রসারণ দেখতে পাবেন অল স্পোর্টস প্রো ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে। অল স্পোর্টস প্রো প্রত্যেকটা সদস্যকে জামতলিয়া উদয়াচল সংঘের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আপনাদের ড্রয়িং রুমের
পৌঁছে দিচ্ছে জেপিএল টুর্নামেন্টকে। আমাদের গ্রামবাসীর কাছে অনুরোধ, আপনারা দলে দলে আসুন, দেখুন, খেলা উপভোগ করুন, নিজের প্রিয় দলকে সাপোর্ট করুন। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের অল স্পোর্টস প্রো ইউটিউব চ্যানেলকে। একশো 29 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নামবে মুন 11। এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি A to Z বীরভূমের দলীয় অধিনায়ক তাদের প্লেইং 11 নিয়ে মাঠে প্রবেশ করছেন। খুব শীঘ্রই আমরা দেখতে পাবো মুন 11-এর দুই প্রারম্ভিক ব্যাটার, সম্ভবত সুদীপ এবং জয়কে, গিরি এবং সুদীপকে। A to Z বীরভূম এই মুহূর্তে আমাদের মাঠের মধ্যে আলোচনাটা সেরে নিচ্ছেন। মুন 11-এর ব্যাটার মাঠের মধ্যে প্রবেশ করুন। সময় খুবই সীমিত, এর পরের খেলা ফাইনাল। এই মুহূর্তে দুই গড়াপত্তনকারী ব্যাটার গিরি এবং সুদীপ মাঠের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। 129 রানের লক্ষ্যমাত্রা, যদিও 129 খুব একটা বড় টার্গেট নয়, তবুও একটা প্রেসার, একটা চাপ নিয়ে মাঠের মধ্যে নামছেন দুই গোড়াপত্তনকারী ব্যাটার। বোলিংয়ের দায়িত্ব থাকবেন বিশ্বস্ত বোলার মনিরুল। নিজেকে একটু ঝালিয়ে নিচ্ছেন এবং দলীয় অধিনায়ক ফিল্ডিং সেট করে নিচ্ছেন। চেষ্টা থাকবে 129 রানের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই বিপক্ষ দলকে আটকে দেওয়া। সেই সূত্রেই দলীয় অধিনায়ক দলের সব থেকে অভিজ্ঞ বোলার মনিরুলের হাতে বলটি তুলে দিয়েছেন। মাইক্রোফোনে পালাবদল। তো দ্বিতীয় ইনিংসে আমি রাহুল আবার এসেছে আপনাদের সামনে। প্রথম বল রিভার্স করার চেষ্টা ছিল সুদীপের, এখানে বিট হলেন মনিরুল, পুরোপুরি বিট করলেন ব্যাটার সুদীপকে, অর্থাৎ ডট বল। তো যেখানে মুন একাদশ টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, A to Z প্রথমে ব্যাটিং করে 129টা রানের লক্ষ্য মাত্রা দিয়েছে। স্ট্রাইকে সুদীপ, নন স্ট্রাইকে গিরি। দ্বিতীয় বল মনিরুল, প্রথম ওভার
সজোরে চালানোর চেষ্টা, স্লো আর্ম ডেলিভারি, বুঝে উঠতে পারেননি ব্যাটার, চমকে গেলেন। ডট বল আবারও। দুইটি বলে দুইটি ডট। একটা স্টার্ট ভালো চাইছেন সুদীপ এখানে, পাওয়ার প্লেটা কাজে লাগাতে চাইছেন, আর বোলার চাইছেন কামব্যাক করতে, ব্যাক টু ব্যাক। শর্ট পিচ বল, এটা পাঠালেন মাঠের বাইরে, এটা কোনো সুযোগ থাকবে না। যোগ হবে 6টি রান স্কোর বোর্ডে। এই বলটা কিন্তু ছেড়ে কথা বললেন না সুদীপ, তিনি জানেন শর্ট পিচ ডেলিভারি, এই সুযোগ মিস করলে হয়তো একটা বড় সুযোগ মিস করে ফেলবেন। তো কামব্যাক করলেন ব্যাটার সুদীপ, 3টি বল খেলে 6টি রান। প্রথম 2টি বলে 2টি ডট বল এসেছিল, সেখান থেকে এখানে ব্যাটার কামব্যাক করলেন। এখন কি চলছে বোলারের মাথায়, কি বল তিনি চাইছেন? নেক্সট বল, আবারও সজোরে চালিয়েছিলেন, ফিল্ডার চেস করছেন বলটাকে এবং ওয়েল ফিল্ডেড। 1 রানে প্রান্ত বদল হবে, স্ট্রাইকে আসবে গিরি। প্রথম বল তিনি ফেস করবেন এই দ্বিতীয় ইনিংসের, অর্থাৎ 4টি বলে 7টি রান এখনো পর্যন্ত এসেছে। পঞ্চম বল ওভারের প্রথম বল গিরি ফেস করবেন। আমরা জানি গিরি একটা ভালো ব্যাটার, বীরভূমের এক ভালো নাম। সজোরে চালিয়েছিলেন, পুল করেছেন, কোনো সুযোগ থাকবে না। হাই অ্যান্ড হ্যান্ডসাম, যোগ হবে 6টি রান। পাঁচটি বল অবশ্যই সাইডের একটু চেঞ্জ করে নিয়েছেন। অন্তিম বল, ভালো লাইন দেখে শুনে কাট করতে চেয়েছিলেন এবং ডট বল দিয়ে ওভারটা শেষ করবেন। তো 1 ওভার শেষে রান সংখ্যা 13। ভালো ওভার বোথ সাইড, দুইটি দলই স্যাটিসফাই থাকবেন। দুইটি দলই জানেন যে স্টার্টটা ভালো দিতে হবে। আমরা দেখেছি A to Z, স্টার্টটা ভালো না হলেও ফিনিশটা কিন্তু দুর্দান্ত হয়েছিল। ভোলা এবং ইমরান দুর্দান্ত ব্যাটিংটা করেছে এবং সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করতে হয় ভোলাকে, যেভাবে অন্তিম কয়টা বল খেলে টিমকে একটা ভালো জায়গায় পৌঁছেছেন। মনে হচ্ছিল হয়তো 100 রানের মধ্যে থেকে যাবে A to Z, কিন্তু তার ইনিংসটাই দলকে একটা নির্ভরযোগ্য জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। 129 রানের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে, 54টি বলে 116 রানের প্রয়োজন রয়েছে। এখন বলের দায়িত্বে ইমরান, ব্যাট হাতে সুদীপ। আলতোভাবে খেললেন, ডট বল আসবে। প্রথম বল ডট। ইমরান চাইবেন একটা ভালো ওভার দলের হয়ে প্রডিউস করতে। এদিকে সুদীপ, ক্যাপ্টেন অফ মুন 11, তিনি জানেন স্টার্টটা যত ভালো দেওয়া যাবে ফিনিশটা তত ইজিলি হবে। রিভার্স করার চেষ্টা এবং কানেকশন, লাভলি, দুর্দান্ত শট, কোনো সুযোগ নেই, একেবারে বলকে পাঠালেন মাঠের বাইরে। ফ্ল্যাট 6, পাওয়ার ছিল, টাইমিং ছিল, যোগ হলো 6টি রান। দুর্দান্ত শট, এরকম শট কিন্তু তিনি আরো চাইবেন। পরবর্তী বল নিয়ে প্রস্তুত ইমরান, দেখে শোনে কাট করেছেন। এখানে কিন্তু বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারটা দেখালেন। আগের বলে টাইমিং ছিল, পাওয়ার ছিল, এই বলটাতে তিনি একটু বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে বলকে পাঠালেন 1 বাউন্স ইনটু দ্য ফ্যান্স। যোগ হবে আরো 4টি রান। স্কোর বোর্ডে 23টি রান অলরেডি অ্যাড হয়ে গেছে। 1 ওভার 3 বল 23 রান, 10 ওভারে গেম। 51 বলে 106 রান চাই জেতার জন্য। স্ট্রাইকে ম্যান ইন ফর্ম সুদীপ ব্যানার্জি, ম্যান ফ্রম মুক্তিপুর। এটাও সজোরে চালিয়েছেন, ফিল্ডার রয়েছে পেছনে, ফিল্ড করবেন ইজিলি। যোগ হবে 1 রান স্কোর বোর্ডে। আগের ম্যাচে আমরা দেখেছি সুদীপকে দুর্দান্তভাবে ব্যাটিং করতে, কিন্তু আনলাকিলি ম্যাচটা তিনি হেরে গিয়েছেন। এই ম্যাচ অবশ্য চাইবেন একটা ভালো ইনিংস খেলে দলকে জেতাতে। এখন স্ট্রাইকে গিরি, এক্সপিরিয়েন্স ব্যাটার গিরি। সুইপ করেছেন, ফিল্ডার রয়েছেন নিচে কালি,
কোনো সুযোগ থাকবে না তার জন্য। ওয়ান বাউন্স ইনটু দ্য ফ্যান্স, নো চান্স ফর দ্য ফিল্ডার। চেস করেছিলেন, চেষ্টা ছিল কিন্তু সুযোগটা ছিল না, তার নাগালে বাইরে ছিল। সেই সুবাদে স্কোরবোর্ডে আরো 4 রান যোগ হবে। তো এখানে 28 রান টোটাল স্কোরবোর্ডে। একটি বল এখনো বাকি রয়েছে ওভারে, কিছু একটা করতে হবে বোলিং টিমকে। এক্সপিরিয়েন্স আছে ক্যাপ্টেন মামুনের কাছে, মামুন জানে কিভাবে তার খেলোয়াড়দেরকে কাজে লাগাতে হয়। এখানে ইমরান অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চাইবেন। এই ওভারে তিনি 15টি রান খরচ করে ফেলেছেন, একটি বল বাকি রয়েছে। অফ স্টেম্পের বাইরে বল দেখে শুনে ছেড়ে দিলেন এবং আম্পায়ার ফিরোজ নিজস্ব বাজ পাখির ভঙ্গিতে দেখিয়ে দিচ্ছেন ইটস এ ওয়াইড বল। পরবর্তী বল নিয়ে প্রস্তুত, অন্তিম বল এই ওভারের, দ্বিতীয় ওভার, অন্তিম বল। ওয়াও, হোয়াট আ লাভলি শট, সুইট টাইমিং, নো চান্স ফর দ্য ফিল্ডার। 6 রানস অ্যাডেড টু দ্য স্কোরবোর্ড। 2 ওভার শেষে রান সংখ্যা 35। লাভলি স্টার্ট, যে ধরনের স্টার্টটা চাইছিল মুন 11 সেরকমই স্টার্ট কিন্তু এখানে তারা পেয়ে গেছে সুদীপ এবং গিরির ব্যাট থেকে। হ্যালো হ্যালো, বলের দায়িত্বে তো চলুন, তৃতীয় ওভার মনিরুলের দ্বিতীয় ওভার। 1 ওভারে 13টি রান তিনি প্রথম ওভারে খরচ করেছিলেন। 2 ওভার শেষে 35। तो चलिए चेंज इन द लैंग्वेज, आते हैं हिंदी में। मनिरुल को बुलाया गया फिर से गेंदबाजी के लिए। रिवर्स फिर से करने की कोशिश, कोई कनेक्शन नहीं, लेग स्टंप में डाली हुई गेंद, डॉट गेंद। निराश होंगे सुदीप, इस गेंद को कहीं भी खेल सकते थे, ग्राउंड के चारों तरफ खेलना जानते थे, पता है उनको, पुल भी आता है उनको, लेकिन मिस किया डॉट गेंद के साथ। दूसरा गेंद मनिरुल, ये लीजिए, स्वीप किया, फील्डर है पीछे, 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक में बदलाव, गिरी फिर से स्ट्राइक में। गिरी फिलहाल 4 गेंदों में 16 बनाकर खेल रहे हैं। सुदीप 10 गेंदों में 19। मनिरुल 1 ओवर 2 गेंद 14 रन खर्च कर चुके हैं। तीसरी गेंद इस ओवर का, कट करने की कोशिश थी, कनेक्शन ये भी नहीं है। इनसाइड एज, 1 बाउंस, स्लिप के पास गया, यानी डॉट गेंद। नाइस कमबैक फ्रॉम द बॉलर मनिरुल, कमबैक किया बॉलर यहां पर। 2 ओवर 3 गेंद 36 स्कोरबोर्ड में लग चुका है। अच्छा स्टार्ट मिल चुका है मून 11 के दोनों खिलाड़ियों को। चौथा गेंद फिर से पुल करने की कोशिश थी, गेंद नीची रही, कोई मौका नहीं, बैटर के पास मिलेगा डॉट गेंद। यानी अभी भी 2 गेंद इस ओवर में बचा हुआ है, अभी तक 1 रन सिर्फ खर्च किए हैं मनिरुल ने। अगली गेंद, ये लीजिए, फ्लिक शॉट, नो चांस फॉर द फील्डर, मिलेगा छक्का। 6 रन जोड़ दीजिए स्कोर बोर्ड में। ये तो तोहफा है गिरी के लिए, क्योंकि लेग स्टंप में डाली हुई गेंद, फील्डर तो है तैनात, लेकिन इतना खराब गेंद आप डालोगे तो छक्का ही जाएगा। फिलहाल अच्छा ओवर है, 7 रन इस ओवर में वो दे चुके हैं। आखिरी गेंद, ये लीजिए, लो फुल टॉस गेंद, सिंगल हैंडेडली भेजा लॉन्ग ऑफ के ऊपर, ग्राउंड के बाहर, मिलेगा छक्का। यानी 3 ओवर के बाद 48, कोई भी विकेट अभी तक नहीं खोया मून 11। यानी A to Z को कमबैक करने के लिए इस पार्टनरशिप को तोड़ना पड़ेगा। कौन तोड़ सकते हैं इस पार्टनरशिप को, कौन होंगे वो गेंदबाज, एक अच्छा स्पेल कौन डाल सकेंगे अपनी टीम के लिए और कमबैक कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। फिलहाल गेंदबाजी के लिए भेजा गया
संदीप को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। अपने स्पेल का पहला ओवर डालते हुए 3 ओवर में 48 हो चुका है। 10 ओवर का मैच है, 42 गेंदों में 81 चाहिए जीतने के लिए। अब लगातार विकेट चाहिए कमबैक करने के लिए ए टू जेड को। मामून के पास एक्सपीरियंस है, वो काम कर सकते हैं। सुदीप लेग कट बॉल देखा परखा और सिंगल के लिए गए थे, लेकिन सिंगल मिलेगा नहीं है। फील्डर है वहां पर शौरनो, अच्छी फील्डिंग, यानी डॉट गेंद। सुदीप 11 गेंदों में 19 रन बनाकर खेल रहे हैं, नॉट आउट हैं, कप्तान है इस टीम के। फिर से रिवर्स करने की कोशिश, लेकिन डॉट गेंद। तो यहां पर फिलहाल कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए एक अच्छी ओवर डालते हुए संदीप लगातार 2 डॉट गेंद, मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। तीसरी गेंद इस ओवर का, ये लीजिए, ये गेंद जाएगी बाहर। व्हाट अ लवली शॉट, पावर एंड टाइमिंग एक साथ, 2 फील्डर के बीच में। डी पॉइंट में फील्डर तैनात है और लॉन्ग ऑफ में जो कवर साइड है ना वो खाली था, उसी जगह बॉल को भेजा, मिलेगा चौका। 3 गेंदों में 4 रन इस ओवर में आ चुका है सुदीप। 13 गेंदों में 23 रन संदीप। ये लीजिए, जिस विकेट की तलाश था वो यहां पर आता हुआ। विकेट विकेट विकेट, लौटना पड़ेगा सुदीप को। कमबैक किया संदीप, और कप्तान वही चाहते थे कि कौन है वो गेंदबाज जो इस साझेदारी को तोड़ सकते हैं, इस पार्टनरशिप को तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप बहुत ही भयानक आता हुआ, डेंजरस पार्टनरशिप बन रहे थे अपने टीम के लिए। लेकिन अच्छा खेला दोनों बल्लेबाज, सुदीप और गिरी। तो लौटना पड़ा सुदीप को। अच्छा इनिंग्स खेल गया अपने टीम के लिए। स्टार्ट तो मिल चुका है, लेकिन गिरी अभी तक मौजूद है स्ट्राइक में, नॉन स्ट्राइक में। स्ट्राइक में जॉय है, जॉय को भेजा गया। और एक राइजिंग स्टार है, अच्छा शॉट है, पावर है जॉय के पास। पिछले दिन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी किया था अपने टीम के लिए। वाओ, व्हाट अ लवली डिलीवरी। यहां पर लौटना पड़ेगा जॉय को क्लीन बोल्ड होकर। और क्या स्पेल है मेरे भाई। संदीप यहां पर अपना जलवा दिखाते हुए एक के बाद एक विकेट, 2 गेंदों में 2 विकेट, और टीम को कमबैक किया, वापस गेम में टीम को लाते हुए। और यह मैच फिर से फाइट बनता हुआ। और धीरे धीरे 22 यार्ड्स की तरफ बढ़ते हुए इस टीम का सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज अमित, मैन फ्रॉम कड़िद्धा। अब अमित को भेजा गया क्योंकि पता है कि अमित के पास जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सारे मैच अपना बल पर, अपना दम पर जिताए हैं। फिलहाल गिरी नॉन स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक पर अमित, और ये बॉल है हैट्रिक बॉल। आखिरी गेंद इस ओवर का, क्या अमित हैट्रिक कर पाएंगे? संदीप हैट्रिक का चांस था लेकिन गवाया। लेकिन अच्छा ओवर, 1 रनों से तसल्ली यहां पर अमित के द्वारा। और एक अच्छा ओवर अपने टीम के लिए फिनिश किया संदीप ने, 2 विकेट दिलाया अपने टीम को। चार ओवर के बाद 53, लॉस ऑफ 2 विकेट। मैच फिर से 50-50। कोई भी टीम यहां से जीत सकती है। जो टीम जीतेगी वो जाएगी सीधा फाइनल में, और जो टीम हारेगी अगले साल के लिए बेस्ट विशेस, यानी टाटा बाय बाय। सो कोई भी टीम यहां से नहीं चाहेगी, हारना नहीं चाहेगी, जीतना चाहेंगे दोनों टीम।
इमरान को फिर से बुलाया गया। एक ओवर में 22 रन वो खर्च कर चुके थे, लेकिन एक्सपीरियंस है, फिर से भरोसा जताया। ये लीजिए, देखा प्रकाश सिंगल के लिए गए क्योंकि अमित के पास एक्सपीरियंस है और अमित को पता है कि मुझे अभी रहना है, मुझे आखिर तक खेलना है, क्योंकि गिरी सेट होकर अभी खेल रहे हैं। स्ट्राइक पर गिरी को लाया। एक ओवर एक गेंद, 23 रन खर्च कर चुके हैं यहां पर इमरान। स्ट्राइक में गिरी, 8 गेंदों में 28 बनाकर खेल चुके हैं, सेट हैं, फिनिश करना जानते हैं, बड़े हिट मारना जानते हैं इमरान गेंदबाजी के छोर पर। ये किया, ये मिस किया, फुल टॉस था, छक्का के लिए जा सकता था लेकिन मिलेगा चौका। रन जिधर से आए, जैसे भी आए, रन तो रन है, इंपॉर्टेंट रन। 4 रन जोड़ दीजिए स्कोरबोर्ड में। लो फुल टॉस गेंद थी, मिस किया शायद। लेकिन जो भी मिला उस पे संतुष्ट होना पड़ेगा। फिलहाल अगली गेंद के लिए तैयार। वाह, व्हाट अ डिलीवरी, गुड कमबैक फ्रॉम द बॉलर इमरान। देखा और इजीली खेला, रिस्क नहीं उठाया। 58, 2 विकेट खोकर, 4 ओवर 3 गेंद। ये भी अच्छी गेंद, ये भी मौका नहीं बाउंड्री के लिए। इस पे भी मिलेगा सिंगल, यानी और 1 रन। अभी भी 2 गेंद बचा हुआ इस ओवर में। चलिए, 59 रन। अमित स्ट्राइक पर है। क्या अमित बड़े हिट के लिए जाएंगे? ये लीजिए, वाओ भाई, क्या प्लेसमेंट है, फील्डर है पीछे, चेस करेंगे, कोई मौका नहीं, मिलेगा चौका। और इसको कहते हैं कि एक्सपीरियंस। फॉर्म इज टेम्पोररी, क्लास इज परमानेंट। क्लास है अमित के पास। अमित को पता है कि फील्डर कहां तैनात किया गया है और वो खाली जगह पर गेंद को भेजा चौके के लिए। और ये लीजिए, नो बॉल, यानी फ्री हिट, तोहफा ही तोहफा। यानी अगला गेंद मिलेगा एक फ्री हिट, तोहफा मिलेगा। क्या ये तोहफा कबूल कर पाएंगे अमित? फुल टॉस गेंद जोर से उड़ाया, फील्डर है पीछे लेकिन आउट नहीं होंगे क्योंकि ये फ्री हिट गेंद है। इस पे इतना ज्यादा नुकसान तो होगा नहीं, लेकिन फुल टॉस बॉल को मिस किया, शायद निराश होंगे यहां पर अमित। एक गेंद अभी बचा हुआ इस ओवर का। छोर बदलेंगे गेंदबाज। गिरी स्ट्राइक पर है। वाओ, व्हाट अ शॉट, क्या शॉट है भाई। लॉन्ग ऑफ के ऊपर जड़ दिया छक्का। मिलेगा 6 रन स्कोरबोर्ड में और 6 रनों का इजाफा। यानी 5 ओवर के बाद 71, 71 लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 5 ओवर। व्हाट अ लवली इनिंग्स इज प्लेइंग गिरी। He is 39 from just 12 ball. 58 runs need from just 30 balls. What a lovely innings he is playing. Amit is still playing. He is 7 run from 4 ball and he has the experience. He knows how to win the match. He wants to rotate the single. But Giridhari playing a destructive innings. Now the bowler. Fast ball, single. Sandeep bowled extremely well. He spent only 6 runs in 5 runs in first over and got 2 wickets. Now Giri is on the strike. Wow. Fielder is down the ball. Chance, chance, chance and miss it. यहां पर एक विकेट आ सकता था और किसका विकेट? गिरी का विकेट। इस टीम का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, इस टीम का इन फॉर्म बल्लेबाज गिरी का विकेट आ सकता था, मिस किया पर मनी रूल ने, और खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस विकेट का, क्योंकि यह विकेट बहुत जरूरी था टीम के लिए।
तो चलिए 73 रन बन चुके स्कोर बोर्ड में, 2 विकेट जरूर हासिल कर चुके थे। अमित स्ट्राइक में, कट शॉट, पीछे फील्डर है लेकिन अच्छी फील्डिंग यूनुस के द्वारा। तैनात किया गया था बाहर डीप पॉइंट में, अच्छा फील्डिंग किया, चौका बचाया, 3 रन बचा अपने टीम के लिए, बहुमूल्य वो रन था। फिर से स्ट्राइक में गिरी, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, 13 गेंदों में 40 रन बनाकर वो खेल रहे हैं। अच्छी गेंद जोर से मारने की कोशिश, सिंगल मिलेगा और स्ट्राइक में बदलाव। अभी तक सिर्फ 4 ही रन आए इस ओवर से, यानी और एक अच्छा ओवर डालते हुए अपने टीम के लिए संदीप। 1 ओवर 4 गेंद वो डाले हैं, 9 रन और 2 विकेट। क्या स्पेल है मेरे भाई, वाह व्हाट अ डिलीवरी, अच्छी गेंद, फिर से एक डॉट गेंद। 11 गेंद वो डाल चुके हैं, सिर्फ 9 रन खर्च किए हैं और अभी 2 विकेट वो ले भी चुके हैं। तो इस मैच का सबसे बेहतरीन गेंदबाज अगर किसी को चुना जाए ना तो वो ये है संदीप। वाओ, और एक डॉट गेंद, और एक डॉट गेंद, और डॉट गेंद के सर ओवर, यानी 6 ओवर के बाद 75। 75 after 6 over, loss of 2 wicket, 54 runs need from just 24 balls. Great innings playing by Giri. What a lovely innings. सुदीप ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में स्टार्ट दे चुके थे, उसके बाद गिरी अभी भी संभाल रहे हैं टीम को, और अमित अपना दिमाग को यूज कर रहे हैं, खिला रहे हैं गिरी को, क्योंकि अमित को पता है कि गिरी को खिलाना जरूरी है, क्योंकि गिरी सिंगल हैंडेडली अपना मैच को फिनिश कर सकते हैं। अब गेंदबाजी के लिए किसको बुलाया जाएगा, कौन है वो गेंदबाज जो इस मैच को बदल सकते हैं, जो फिर से ए टू जेड को और एक बेहतरीन ओवर और एक बेहतरीन स्पेल दे सकते हैं। जिस तरह का स्पेल यहां पर संदीप ने डाला वो काबिले तारीफ है। 2 विकेट अपने टीम के लिए हासिल किया, और शुभम दुबे को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक में गिरी, दुबे जोर से उड़ाया, फील्डर रहेंगे दर्शक बनकर, गेंद जाएगी बाहर, यानी स्कोरबोर्ड में और 6 रनों का इजाफा। और यहां पर गिरी पहुंच चुके हैं 47 पर, 15 गेंदों में 47। क्या मिलेगा इस टूर्नामेंट का और एक 50। दूसरी गेंद, दुबे क्या कमबैक कर पाएंगे। ये लीजिए गिरी फिर से डीप पॉइंट में खेला, पीछे फील्डर है यूनुस, 1 रन मिलेगा, यानी 82। 2 विकेट खोकर 82 रन बना चुके हैं। 6 ओवर 2 गेंद, यानी 22 गेंदों में 47 चाहिए जीतने के लिए। ऑफ टीम के बाहर डाली हुई गेंद, अमित कट करना चाहते थे, कोई मौका नहीं, यानी डॉट गेंद। फिर से कमबैक किया यहां पर दुबे ने, अच्छे गेंदबाज हैं, बीरभूम का नए उभरते हुए खिलाड़ी हैं दुबे। अमित, एक्सपीरियंस अमित, फिर से
ये बहुत बाहर है, यानी वाइड गेंद, मिलेगा 1 रन। तो चलिए अमित फिलहाल स्ट्राइक पर हैं। ऑफ स्टंप के, फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, फिर से वाइड, लगातार 2 वाइड गेंद। बहुत ही प्रेशर में है ये दोनों टीम। अभी किसी भी तरफ ये मैच जा सकता है। फिलहाल 50-50 का मैच है। यहां पर कमबैक करना चाहते हैं ए टू जेड के हर एक गेंदबाज। ये लीजिए, ये गेंद अच्छी गेंद है, यानी एक डॉट गेंद। 4 गेंद अभी तक डाल चुके हैं, 9 रन अभी तक वो दिए हैं। 84 बन चुका है बोर्ड में। 20 गेंदों में 45 चाहिए जीतने के लिए। वाओ वाओ एंड वाओ, ब्यूटीफुल शॉट। नो चांस फॉर द फील्डर, क्लास दिखाया, गैप ढूंढा और भेजा गेंद को बाहर। फील्डर वहां नहीं थे, होते भी तो चौका होता। यानी क्या शॉट है भाई, छक्के के लिए गेंद को भेजा बाहर अमित। उन्नीस गेंदों में 39 चाहिए, मैच का भी इसी होता हुआ। वाओ, फिर से एक प्लेसमेंट, ड्राइव किया डीप पॉइंट में, फील्डर है वहां पर यूनुस। मिलेगा 1 रन और ओवर। तो आखिरी 3 ओवर, 38 रन चाहिए जीतने के लिए। 18 गेंदों में 38 बनाना इतना भी डिफिकल्ट कम है नहीं। लेकिन मेरे भाई ये क्रिकेट है, ये अनसर्टन गेम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी टीम गेम में वापस आ सकता है। फिलहाल कप्तान जो है ना, वो ए टू जेड के मामून एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं कैसे वापस आया जा सकता है टीम में। फिलहाल वो कोशिश करते हुए अपने टीम के एक्सपीरियंस जो गेंदबाज है उनको समझाते हुए कि भाई कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से और मौका नहीं है हमारे पास। 3 ओवर में 38 चाहिए, लेकिन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम गिरी और अमित का। अमित आए और खुद को संभाला। अमित को पता था कि यहाँ पर एक अच्छा इनिंग्स हमें खेलना पड़ेगा, गिरी को खिलाना पड़ेगा। गिरी के पास वो पावर है, टाइमिंग है, और अमित के पास एक्सपीरियंस है, और वो फिलहाल यूज करते हुए और आखिरी ओवर अपने स्पेल का डालने के लिए आ चुके हैं संदीप। संदीप ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने 2 ओवर में 2 विकेट और बेहतरीन गेंदबाजी, और वो ध्रुव के इक्के रहे। वो चाहते हैं अपने बेस्ट गेंदबाज को फिर से एक मौका दिया जाए। अगर कोई गेंदबाज है जो इस मैच को वापस कर सकते तो वो संदीप है। तो लीजिए संदीप, स्ट्राइक में अमित। वाह, व्हाट अ लवली डिलीवरी। जिस चीज के लिए बुलाया गया संदीप को वो फिलहाल करते हुए। डॉट गेंद, अमित स्वीप करना चाहते थे, कनेक्शन नहीं है। 17 गेंदों में 38 चाहिए जीतने के लिए। गिरी नॉन स्ट्राइक एंड पर सिंगल के लिए चाहते हैं, वो स्ट्राइक पर आए। अमित क्या करेंगे? ये लीजिए मेरे भाई, फुल टॉस मत डालिए। आप एक एक्सपीरियंस बैटर को लेग स्टंप के बाहर फुल टॉस डालोगे तो वो गेंद को भेजेंगे बाहर, मिलेगा छक्का। अब 16 गेंदों में 32 चाहिए, काफी इजी होता हुआ। शायद निराश होंगे यहां पर संदीप। संदीप के पास वो क्वालिटी है, अच्छी गेंद डाल सकते हैं। अगली गेंद, स्टेप आउट किया, बाहर गए, जोर से मारा, फील्डर है पीछे, सिंगल के लिए गए। तो चलिए अब स्ट्राइक में कौन है इस टीम का सबसे डेंजरस बैटर, जो अभी तक 48 रन बना चुके हैं 16 गेंदों में, बेहतरीन अंदाज में बैटिंग करते हुए। गिरी 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 स्ट्राइक में है फिलहाल। पंद्रह गेंदों में 31 चाहिए जीतने के लिए। संदीप
वाओ, ब्यूटीफुल, ह्यूज एंड हैंडसम, व्हाट अ लवली शॉट। और जड़ दिया इस टूर्नामेंट का और एक 50। बैट तो दिखा दो मेरे भाई। 17 गेंदों में 54। गिरी प्लीज शो योर बैट। आपने बहुत अच्छा इनिंग्स खेला टीम के लिए। अभी भी जीतने के लिए 14 गेंदों में 25 रन चाहिए जीतने के लिए। गिरी को पता है कि अभी मैच को फिनिश करना है, मुझे अंत तक खेलना है और टीम को फाइनल में पहुंचाना है। बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला गिरी ने, गेंद को भेजा ग्राउंड के बाहर। फिलहाल अगली गेंद, यॉर्कर डिलीवरी, जड़ में डाली हुई गेंद, उड़ाना चाहते थे, सिंगल मिलेगा। और स्ट्राइक में कौन? अमित, इस टीम का सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज। 13 गेंदों में 24 रन चाहिए जीतने के लिए। वाओ वाओ वाओ, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। मेरे भाई, क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पोररी। वो फिलहाल दिखाते हुए अमित कि मेरे भाई, मैं बहुत सारे मैच ऐसे खुद अकेले जिता चुका हूं और वही काम यहां पर करते हुए, साथ देते हुए, कंधों में कंधा मिलाकर गिरी के साथ देते हुए 16 गेंदों में 29 बना चुके हैं अमित। 18 गेंदों में 55 गिरी। अब 12 गेंदों में जीतने के लिए 18 रन चाहिए। गेंदबाजी के लिए बुलाया गया मोनीरूल को। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीम के लिए। ये ओवर अगर अच्छा डाला ना A to Z, तो वो ऐसा नहीं है कि वो मैच हार गए, फिर से मैच में आ सकते हैं। लेकिन गिरी मौका नहीं देंगे, मैच में वापस आने का मौका गिरी आपको नहीं देंगे। ये भी। और अब चाहिए 11 गेंदों में 14, गिरी 19 गेंदों में 59। क्या बैटिंग है भाई, दिल जीत लिया सबका। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग, लगातार अपने टीम के लिए बेहतरीन इनिंग्स खेलते हुए मनीरूल कमबैक करना चाहेंगे। 11 गेंदों में 14, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऑफ टाइम के बाहर डाली हुई गेंद, फिर से कमबैक किया। यहां पर थोड़ा तसल्ली जरूर मिलेगा। 115, 2 विकेट खोकर 8 ओवर 2 गेंद, 10 ओवर का मैच है। 10 गेंदों में 14 चाहिए जीतने के लिए। गिरी फिलहाल स्ट्राइक में। स्वीप करने की कोशिश थी, क्रॉस बैटेड शॉट, फिर से डॉट गेंद, एक के बाद एक डॉट बैंड आता हुआ। 9 गेंदों में 14 चाहिए। ये मैच धीरे धीरे इंटरेस्टिंग बनता हुआ। ये 3 गेंद जो है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये 3 गेंद, फिर से एक डॉट गेंद, मैच में आया ट्विस्ट। बैक टू बैक 3 डॉट गेंद, यानी 8 गेंदों में 14 चाहिए। 2 गेंद इस ओवर में बचा हुआ है। यहां पर अगर 2 गेंद अगर डॉट डाल दिया रहा तो मजा आ जाएगा मैच में। फिलहाल मैन इन फॉर्म गिरी वो मौका देना नहीं चाहेंगे। फिर से फील्डर है पीछे और ये लीजिए, ड्रामा ड्रामा ड्रामा। मैच में फिर से ट्विस्ट आता हुआ और A to Z मैच में वापस आते हुए गिरी को भेजा बाहर। 7 गेंदों में 14 चाहिए, लौटना पड़ेगा 23 गेंदों में 59 बनाकर गिरी को। और नए बल्लेबाज कौन है? जूनियर संदीप। पावर है, टाइमिंग है, संदीप जानते हैं बड़ा हिट लगाना। पिछले मैच में अच्छा बल्लेबाजी वो किए थे, इस मैच में भी चाहेंगे टीम के लिए एक अच्छा शॉट लाने के लिए। 115 बन चुका है, 3 विकेट खो चुके हैं। 7 गेंदों में 14 चाहिए जीतने के लिए। मनीरूल बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करते हुए, अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए। अब लीजिए, जेनरेशन गोल्ड स्ट्राइक पर है और जेन बोल्ड।
अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर ने इशारा किया कि भाई इस गेंद आपको फिर से डालना पड़ेगा, यानी और एक वाइड गेंद। 7 गेंदों में 13। ये मैच मेरे भाई धीरे धीरे ट्विस्ट की तरफ जाता हुआ, मजा आता हुआ मैच में। आखिरी गेंद, 9th ओवर, सेकेंड इनिंग्स, जीतने के लिए चाहिए 7 गेंदों में 13। वाह, फिर से फील्डर है पीछे और सेफ फील्डर है। सिंगल नहीं लिया यहां पर अमित। अमित को पता है, अमित चाहते हैं कि वो खुद खेलेंगे और एक्सपीरियंस को यूज करेंगे, यानी 1 ओवर में चाहिए 13। वाह, क्वालिफाइड टू अपना मूड में आता हुआ धीरे धीरे। 13 रन बनाना आसान तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैच है, प्रेशर का मैच है, हार्ट बीट बढ़ता जा रहा है। इस टूर्नामेंट का दूसरा क्वालिफायर, जहां पर मून 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और 129 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए यहां पर फिलहाल A to Z मैच में कमबैक किया। अच्छा गेंदबाजी, और आखिरी ओवर कौन डालेंगे? दुबे। तो चलिए, एक्सपीरियंस है दुबे के पास, अच्छा गेंदबाजी कर सकते हैं, क्वालिटी है, टैलेंट है, वो यूज कर सकते हैं और हीरो बन सकते हैं अपने टीम के लिए। ये हीरो बनने का मौका है। अमित के पास तो एक्सपीरियंस है, अमित ऐसे बहुत सारे मैच खुद अपने बल पे जिताया है, लेकिन यहां पर मौका है दुबे के लिए, एक्सपीरियंस को बीट करके अपना जलवा दिखा सकते हैं। 1 ओवर में 13 चाहिए। फिलहाल अमित स्ट्राइक में, नॉन स्ट्राइक में संदीप। 5 फील्डर है सर्कल के बाहर, 3 फील्डर ऑफ स्टंप में लेकर गेंदबाजी। वाह भाई, पहला गेंद क्या हुआ, फील्डर है और यहां पर विकेट। यहां पर जो जाल बिछाया गया था मामून के द्वारा, वही जाल में फंसते हुए अमित। 3 फील्डर ऑफ स्टंप में तैनात किया गया था, 2 फील्डर लेग स्टंप में, और लेग स्टंप में गली जो था ना वो खाली था और स्वीप करने गए अमित, वहां पर फंस गए। लौटना पड़ेगा अमित को। यहां पर दुबे फिलहाल अपना क्वालिटी दिखाते हुए, तो चलिए भाई 13 चाहिए जीतने के लिए। 5 गेंदों में बल्लेबाज को लौटना पड़ा, एक्सपीरियंस बल्लेबाज को। अब और एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज को भेजा गया बैटिंग के लिए, मृदुल, जिन्होंने पिछले ओवर में 2 बड़े छक्के लगाए थे, जो अपना टाइमिंग और क्लास दिखाए थे। अब क्या इस ओवर में दुबे फिर से विकेट ले सकते हैं? क्या अपने टीम को जिता सकते हैं? 5 गेंदों में 13, धीरे धीरे हार्ट बीट बढ़ता हुआ। ये लीजिए मृदुल, मृदुल फील्डर है लेकिन कोई मौका नहीं। अच्छी कोशिश थी फील्डर इमरान के द्वारा, लेकिन मिलेगा छक्का। वाह भाई वाह, क्या बैटिंग है। यहां पर अपना बैट को हथियार बनाते हुए पहला गेंद में गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर, एक्सपीरियंस मृदुल। 4 गेंदों में 7 रन। नाजुक मोड़ पर यह मैच आता हुआ और ये मैच घूमता हुआ एक बार इस तरफ तो दूसरी बार उस तरफ। वाह भाई वाह, क्या बैटिंग है मृदुल के द्वारा। मृदुल आया, देखा और गेंद को भेजा छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत दिनों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं मृदुल, और यही दर्शाते हुए कि मेरे भाई मेरे पास क्लास है, टाइमिंग है। फिलहाल दुबे, ये लीजिए, ये लीजिए, ये भी दोनों फील्डर के बीच में ऑफ स्टंप में डाली हुई गेंद कट किया। दोनों फील्डर के पास मौका नहीं था, 1 बाउंस इनटू द फैंस। वाह भाई वाह।
3 गेंदों में 3 रन चाहिए अब। तो जितनी तारीफ की जाए मृदुल का उतना कम। मृदुल ने जिस तरह 2 गेंदों में एक छक्का और एक चौका जड़ दिया और इस मैच का प्रेशर को घटाया, कप्तान को तसल्ली मिला। सुदीप को थोड़ा तसल्ली मिलेगा क्योंकि मैच अभी बहुत ही क्लोज आ चुका है। 3 गेंदों में 3 रन चाहिए, काफी इजी होता हुआ यह मैच मून 11 के लिए। फिलहाल मामून को कुछ करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा एक्सपीरियंस को। दुबे, अच्छा गेंदबाज दुबे, अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, कमबैक करना जानते हैं। 3 गेंदों में 3 रन। स्ट्राइक में मृदुल, नॉन स्ट्राइक एंड में संदीप। चलिए यहां पर वाल देते हुए अब चाहिए 3 गेंदों में 3 रन। दुबे, बॉलर दुबे, बैटिंग बैटर कौन है? एक्सपीरियंस मृदुल। यूनुस को बुलाया गया सामने हेडलाइट के लिए। फिर से एक शॉर्ट गेंद, फिर से उड़ाया और ये छक्का, और हमें मिल चुका है इस टूर्नामेंट का दूसरा फाइनलिस्ट। वाह वाह, छक्का है। व्हाट अ लवली शॉट, व्हाट अ इनिंग्स, व्हाट अ फिनिश। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में फिनिश किया मृदुल ने। 3 गेंद फेस किया, 2 छक्का 1 चौका। वाह भाई वाह, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और कंग्रेचुलेशन मून 11 फॉर क्वालिफाइंग इनटू द फाइनल। तो हमें 2 टीम मिल चुका है फाइनल के लिए, ये J11 और मून 11। कंग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस। बेस्ट विशेस A to Z अगले साल के लिए। फिलहाल इस साल के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड कंग्रेचुलेशन सुदीप बैनर्जी एंड मून 11 फॉर क्वालिफाइंग ফাইনাল। তো এখন 10 মিনিটের লাঞ্চ ব্রেক থাকছে, তারপরে আমরা চলে আসবো মেগা ফাইনাল নিয়ে।